Hello everyone. Let's start exercise 13.5, which includes the volume of cube and the cuboid. What is the volume of cube? We have already discussed in the earlier videos. It is equal to the side cube. जो side given है, all sides, all edges will be same. Length equal to breadth equal to height. So its volume will be side cube. And for the volume of cuboid, the formula will be length into breadth into height. Now in question number 1, you are given a matchbox and you already know that the matchbox is in the shape of cuboid. So its dimensions or size is given to you 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. It means you are given the length, breadth and the height, or you can say the thickness of the matchbox. Now you have to find out that volume of the packet which contains 12 such matchboxes. So means you have to find out the volume of 12 matchboxes. First find the volume of one matchbox by multiplying these length into breadth into height by using this formula, and then to find the volume of packet multiply the volume of one matchbox by 12 because there are 12 matchboxes. So it is very simple. एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. And don't forget to write the unit after that. Units will be centimeter cube. One for the length, one for the breadth and one for the height. So on multiplying the powers gets added. So it will be, the units will be centimeter cube. Now let's start question number 2. Now question number 2. There is a cuboidal water tank. So shape is given to you. This is a cuboidal water tank. And what is the length of the cuboidal tank? It's 6 meter long. And what is the width or breadth of the cuboidal tank? That is 5 meter. And what is the depth, means height of the water tank? It is 4.5 meter. So all the three dimensions L, B and H are given to you, and you have to tell how many liters of water can it hold. Whenever there are liters, it means we are talking about the volume. And volume जो मीटर क्यूब है वही आपका लीटर्स में कन्वर्ट होता है. फर्दर होल्ड, जब आपकी हम बात करते हैं कि कितना होल्ड कर सकता है, होल्ड का मतलब है कैपेसिटी. और जब पानी भरा जाएगा वो टैंक के अंदर भरा जाएगा. जब कैपेसिटी की बात आती है तो वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम. तो आपने वॉल्यूम निकाला है इस मेथड से, यही फॉर्मूला यूज करके. एंड यू आर गिवन एल, यू आर गिवन बी एंड एज वेल एज एच. तो आंसर इज, अगर इसका डेसिमल हटाए तो नीचे 10, 5 2s are 10, 2 3s are 6 and this is equal to 135 meter cube. Now you have to convert it into liters, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कितने लीटर्स ये पानी होल्ड कर सकता है. हमारा आंसर जो आया है वो आया है मीटर क्यूब में. तो रिमेंबर द रिलेशन इज गिवन टू यू, बट this may not be given in your exam, so you have to learn this relationship. 1 meter cube is equal to 1000 liter. So here we are having 135 meter cube. So it will be equal to 135 into 1000 liter. So we have converted this meter cube into 1000 liter. 1 meter cube is 1000 liter. So answer is 135,000 liters. It means 1,35,000 liter. This is the capacity of the tank. मतलब this much liters of water can be held by the cuboidal water tank. Let's see question number 3 now. Now see question number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long. इसका मतलब लेंथ कितनी गिवन है 10 मीटर और विड्थ कितनी गिवन है उसकी 8 मीटर. ठीक है, यानी विड्थ ब्रेड्थ एक ही चीज हो गई, विड्थ भी गिवन है और हाइट आपको बतानी है. हाइट इज नॉट गिवन टू यू, बट आपको वॉल्यूम गिवन है. क्यूबिक मीटर्स का मतलब है मीटर क्यूब, इसको बोला जाता है क्यूबिक मीटर. एंड दिस इज द वॉल्यूम. सो यू आर गिवन द वॉल्यूम. तो अगेन यूज दिस फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 380 एंड फाइंड आउट 380 by L into B. Put the values of L and B from here, 10 and 8, and find out the H. And the answer will be given in meters, क्योंकि ये आपका मीटर क्यूब में है और ये दोनों मीटर्स में है.
तो आपके 2 मीटर की 2 पावर कट जाएगी यहाँ से, ओनली 1 मीटर विल बी लेफ्ट, सो हाइट विल कम इन मीटर. सो पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द हाइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग. डिगिंग मीन्स खोदना है, ठीक है. कितनी खोदने की कॉस्ट आएगी, क्या खोदना है, एक क्यूबॉइडल शेप का पिट यानी गड्ढा खोदना है. क्यूबॉइड शेप का गड्ढा खोदना है अर्थ में, और वो गड्ढा कितना लॉन्ग होना चाहिए, 8 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, 6 मीटर ब्रॉड होना चाहिए और 3 मीटर डीप होना चाहिए. और रेट क्या है उसको खोदने का, 1 मीटर क्यूब को खोदने का रेट है ₹30. अब हम देखेंगे टोटल कितने मीटर क्यूब का गड्ढा खोदना है, मींस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट, ठीक है, टू बी डग आउट. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट, जो डग करना है, क्यूबॉइडल पिट टू बी डग आउट, जो खोदना है वो क्या होगा, क्यूबॉइडल की लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ जो है, हाइट कह देंगे उसको, 8 × 6 × 3, तो ये कितना आ गया 144 मीटर क्यूब, ठीक है. अब क्या करना है, इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को डिग करने की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर क्यूब की है ₹30. और हमने कितने मीटर क्यूब का गड्ढा खोद रहे हैं, 144 मीटर क्यूब का. तो आपने इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आएगा 4,320 rupees. This much will be the cost of digging the pit of 144 meter cube. Now, what is given in question number 5? The capacity of the cuboidal tank is given to you. It is given in liters, 50,000 liters. वॉल्यूम गिवन है, कैपेसिटी का मतलब है आपको लेंथ भी गिवन है, डेप्थ यानी हाइट भी गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. तो बाकी तो सब कुछ इजी है, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली यहाँ से, अगर हमारी ब्रेड्थ मिसिंग है तो हम ब्रेड्थ को निकाल सकते हैं वॉल्यूम को डिवाइड करके लेंथ और हाइट से. तो फॉर्मूला तो इजीली हो जाएगा ट्रांसपोज. बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो लेंथ और हाइट है वो हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, और जो आपका वॉल्यूम है वो हमें गिवन है लीटर्स में. अब हमें ये भी सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए वॉल्यूम. तो वॉल्यूम को अगर हमने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं. तो वॉल्यूम जैसे हमारा 50,000 लीटर था, तो हम अगर इसको हम मीटर सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहते हैं तो वी विल डिवाइड इट बाय 1000. रिमेंबर दिस स्टेप, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 zeros कैंसिल हो गई, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. अब जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है. अब हम इस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और इजीली यहाँ पर हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं. तो 10 5s are 50, और ये जो 2.5 था इसका डेसिमल अगर रिमूव करें तो ऊपर 10 आ जाएगा, एंड 5 5s are 25, 5 2s are 10, और यूनिट्स हमारे 2 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे तो सेंटीमीटर की 1 पावर रह जाएगी सिर्फ. तो ब्रेड्थ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर. सो दिस वाज द मेन स्टेप टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू द सेंटीमीटर क्यूब. अदरवाइज इट इज वेरी इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक विलेज की जो पॉपुलेशन है 4000 लोग रहते हैं, उसमें 4000 है, और हर एक बंदे को यानी पर हेड पर डे एक बंदे को एक दिन का 150 लीटर पानी चाहिए, जिसमें आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कपड़े धोना, नहाना, सब कुछ. तो एक दिन का एक हेड का इतना रिक्वायरमेंट है वाटर का. और उनके पास एक टंकी है, टैंक है, क्यूबॉइडल टैंक, जिसमें कितना वाटर गिवन है, कि उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, मतलब इतना पानी उनके पास वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, इतना टैंक में पानी है, इतनी लेंथ, इतनी ब्रेड्थ और इतनी हाइट तक. आपको बताना है ये टैंक वाला पानी उस गांव में रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने दिन तक चलेगा. तो नंबर ऑफ डेज जो वाटर है वो खत्म होगा, कितने दिन तक चलेगा, नंबर ऑफ डेज इट विल रिमेन, ठीक है, सफिशिएंट फॉर द पीपल. क्या होगा, ऊपर हम लिखेंगे जितना वाटर अवेलेबल है, यानी वाटर इन द टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनफैक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक. और नीचे हम किससे डिवाइड कर देंगे, रिक्वायरमेंट से.
कि एक दिन में कितना, जिस चीज का हम नंबर निकाल रहे हैं वो हम नीचे लिखेंगे कि एक दिन की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय पॉपुलेशन इन वन डे। अब हम यहाँ एक बंदे की बात नहीं करेंगे, पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे। यानी जब भी हम किसी चीज का नंबर निकाल रहे हैं, ऊपर जितनी चीज हमारे पास अवेलेबल है और नीचे जितनी रिक्वायरमेंट है, तो हम दिन निकाल रहे हैं तो नीचे एक दिन की रिक्वायरमेंट लेंगे, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। नीचे हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट कितनी है, 4000 पीपल हैं और ये वन हेड की है, एक बंदे की है, तो हम 4000 से इसको रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमें ऑलरेडी वॉल्यूम गिवन है क्योंकि ये लीटर्स में है, तो इसमें हमारे को अलग अलग डायमेंशंस नहीं गिवन है कि लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है। डायरेक्टली आपको वॉल्यूम गिवन है, जस्ट आपने इसको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना है कि पूरी पॉपुलेशन को कितना चाहिए होगा, क्योंकि ये तो वन हेड का है, ठीक है। तो 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब what is the problem here, the dimensions of the tank are given in meter cube while the volume required by persons are given in liters, so we need to convert it into meter cube। और अगर आप लीटर्स को मीटर क्यूब में करते हैं तो आपको क्या करना है, लीटर्स को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है, लीटर्स को मीटर क्यूब सॉरी मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आएगा, पीछे आपने किया था यहाँ पर मीटर, यहाँ पर आपने ये रिलेशन पढ़ा था, आप इसको देखिए 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल पढ़ा था आपने, 1000 लीटर। अब आप लीटर से मीटर क्यूब में आ रहे हैं तो आपका डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा यहाँ पर 1000, तो वो डिवाइड कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। ये अब मेरा कन्वर्ट हो गया लीटर से किसमें, मीटर क्यूब में। सबसे पहले क्योंकि आप नंबर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ डेज में कोई यूनिट नहीं होगा कि कितने मीटर डेज हैं, डेज में कोई यूनिट नहीं होगा, तो सारे यूनिट्स कैंसिल होने चाहिए, मीटर 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 क्यूब सब कैंसिल हो गए। 3 मीटर्स ऊपर थे और 3 मीटर क्यूब नीचे था। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, 1 2 3 जीरोस कैंसिल, ठीक है, 1 1 कैंसिल। अब यहां से आ गया 15 4 60, यहां से आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, 15 से 15 पूरा कैंसिल हो रहा है। अब रह गया यहाँ पर 2 6 ऊपर रह गया 12 और नीचे क्या रह गया 4, 2 6 12 बाई 4, तो 3 डेज तक ये पानी चलेगा उनका जो टैंक में है। सो इट विल लास्ट फॉर 3 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गोडाउन मेजर्स, यानी गोडाउन का साइज गिवन है, गोडाउन का क्या साइज है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है गोडाउन की, और इसके अंदर वुडन क्रेट्स रखने हैं। क्रेट्स कहाँ रखे जाएंगे, अंदर रखे जाएंगे गोडाउन के, यानी कैपेसिटी की बात हो रही है तो वॉल्यूम निकलेगा यहाँ पर। और आपको क्रेट्स का भी साइज दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और आपको बताना है कितने क्रेट्स रखे जा सकते हैं। फिर से आपने लिखना है नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी केप्ट, कितने पूरे आ सकते हैं उसमें, दैट कैन बी केप्ट, कहां पर केप्ट, इन गोडाउन। तो जब आप नंबर निकाल रहे हैं, अभी पीछे भी हमने किया है, नंबर ऑफ डेज निकाला है, तो ऊपर जितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास रखने के लिए क्या अवेलेबल है, गोडाउन। तो ऊपर आपने वॉल्यूम लेना है गोडाउन का, या फिर यहाँ पर वॉल्यूम की बजाय आप कैपेसिटी लिख सकते हैं कि गोडाउन की कितनी कैपेसिटी है, और नीचे क्या चीज आप प्लेस कर रहे हैं, जिसका नंबर निकालना है उसको आप नीचे रखते हैं। जैसे नंबर ऑफ डेज था तो डेज की रिक्वायरमेंट नीचे रखी थी, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट, एक क्रेट का कितना वॉल्यूम है, ठीक है, वो रखना है आपने। तो गोडाउन का साइज गिवन है हमें 40 मीटर, मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, फिर से पहले की तरह कैंसिल हो जाएगा, और नंबर में कोई भी यूनिट्स नहीं आता, इसलिए यूनिट्स सेम होने चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। इंटू 0.5 मीटर, तो यूनिट्स तो आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसमें डेसिमल्स को हटा के लिख लेती हूँ। अब सबके नीचे वाले जो है सभी डेसिमल्स में है, तो उनके 10 हंड्रेड्स ऊपर लगा लेते हैं। इसका इसमें एक डेसिमल प्लेस है तो इसका 10 आएगा ऊपर, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है तो इसमें 100 आएगा, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है तो 10 आएगा। अब नीचे बिना डेसिमल्स के लिखेंगे हम 15 125 इंटू 5 ओनली, तो अब कैंसिल कर लेते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 15 से पूरा 15 कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट इज 25 5 125
5 8s are 40, 5 2s are 10, तो ये आ रहा है 8 2s are 16 और आगे 3 zeros यानी 16,000. तो how many crates can be kept in the godown? 16,000. Now cube of 12 centimeter, question number 8 is cube of 12 centimeter is cut into 8 cubes. एक क्यूब था जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर थी, उसको कट करा है छोटे छोटे 8 क्यूब्स में. तो जब उसमें कट किया है तो क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम सेम रहेगा. एक क्यूब से 8 क्यूब बना दिए, 8 क्यूब्स बना दिए. तो वॉल्यूम जो है ऑफ वन लार्जर क्यूब जिसको हमने कट किया है, जो कि साइड 12 सेंटीमीटर का है, उसका वॉल्यूम उन 8 स्मॉल क्यूब्स के इक्वल होगा, क्योंकि उसी से बनाए हैं हमने. ठीक है, तो क्यूब्स का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब. तो लार्जर क्यूब की साइड कितनी है? 12 इंटू 12 इंटू 12. और जो स्मॉलर की है वो हम साइड मान लेते हैं ए. ठीक है, उसकी साइड आपको गिवन नहीं है ए. अब ये ए आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहां से ए क्यूब क्या आ जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू 12, और ये जो 8 है ये डिवाइड में आ गया. तो अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 6s are 12. तो ये आ रहा है 216. ठीक है, इक्वल टू ए क्यूब. ए क्यूब की वैल्यू आ गई 216, और ये 6 का क्यूब होता है. तो यहां से आपने क्यूब रूट्स लास्ट टाइम पढ़ा है, तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 6. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा था साइड ऑफ न्यू क्यूब बताओ, तो साइड ऑफ न्यू क्यूब कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर. अब आपको क्या बताना है? रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. एरियाज के लिए हम लार्जर वाले का सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूब है तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर. ये अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. तो रेशियो 6 इंटू साइड स्क्वायर. बड़े वाले की साइड कितनी है? 12 12, और जो छोटे वाले की साइड्स है वो क्या है? 6 साइड स्क्वायर. साइड कितनी फाइंड आउट की है हमने? 6. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया? 4:1. ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज 4:1. इट कैन बी गिवन 1:4. अगर आप स्मॉल वाले का ऊपर रखेंगे और क्या बड़े वाले स्फीयर का क्यूब का नीचे रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, एक रिवर है जिसकी डेप्थ गिवन है आपको, विड्थ गिवन है, और कितने वाटर कितनी स्पीड पे फ्लो कर रहा है, रेट गिवन है, रेट ऑफ फ्लोइंग गिवन है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जैसे नदी से पानी समुद्र में गिरता है, तो आपको बताना है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में, जबकि आपको स्पीड आर की गिवन है. तो आपको ओनली इन अ मिनट बताना है. सबसे पहले हम इसमें रिवर को एज अ क्यूबॉइड लेंगे. जैसे हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लेते हैं, रिवर के केस में हम क्या लेंगे? रिवर कितनी डेप्थ है, रिवर की डीप कितनी वाइड है रिवर, और कितनी स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है. तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी, या फॉल इनटू द सी, फॉल कर लेते हैं, इनटू द सी इन 1 आवर. हमें तो 1 आवर के हिसाब से स्पीड पता है. 1 आवर यानी 60 मिनट्स के हिसाब से 60 मिनट्स में कितना पानी फॉल करेगा. तो वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम क्या होगा? डेप्थ इंटू विड्थ इंटू, अब जो ये हमारी स्पीड गिवन है, रेट ऑफ फ्लो गिवन है, वो किलोमीटर्स में है, जबकि बाकी डायमेंशंस हमारी मीटर्स में है. तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 2 किलोमीटर इज 2000 मीटर. तो यहां से 3 4s are 12, 12 2s are 24, 1 and 3 zeros here. तो 4 zeros, कितने वाटर गिरेगा 60 मिनट्स में. बट वी वांट टू फाइंड आउट इन अ मिनट कितना वाटर गिरेगा. तो इन अ मिनट कितना गिरेगा? ये 60 मिनट्स में फॉल कर रहा है, यानी 1 आवर में. तो हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा. तो ये 60 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट 40,000. 6 4s are 24, 40, sorry 6 4s are 24, 4,000. तो 4,000 meter cube water will fall in a minute. So this is all about exercise 13.5 volume of cube and cuboids. Thanks for watching.